ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 10 જુલાઈ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાक्यों। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में एक दो से प्यार से ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगाड़ देना है। रिगाड़ माना मान सन्मान आपो। तो बाबाए કહ્યું એકબીજાને કેવી રીતે માન સન્માન આપો? તો પોતાનો સ્વધર્મમાં સ્થિત થાઓ। તો આપણો સ્વધર્મ કયો છે? શાંત। હું આત્મા શાંત સ્વરૂપ છું। તો શાંતિના સ્વધર્મમાં સ્થિત થઈ આપસમાં એકબીજાને પ્યારથી ઓમ શાંતિ કહેવું એ બી એકબીજાને માન સન્માન આપવા બરાબર છે। પ્રશ્ન: भक्ति मार्ग में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों है? ભક્તિ માર્ગમાં પણ ભગવાનને ભોગ લગાવવામાં આવે છે। જે પણ દેવી દેવતાઓને માનતા હોય એમને ભોગ લગાવે છે। જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી પણ આપણે પરમાત્માને ભોગ લગાવીએ છીએ। તો આ ભોગ લગાવવાની રસમ રિવાજ કેમ છે? उत्तर: क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। बल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है। આપણે જાણીએ છીએ કે પરમાત્મા નિરાકાર છે, અભોક્તા છે, કંઈ ખાવાના નથી, છતાંય એમની આગળ ભોગ લગાવીએ છીએ। કેમ? લેકિન વાસના તો પહોંચતી है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। तो आ रसम એટલા માટે છે કે ભગવાનને માન સન્માન આપવું, ભગવાનને યાદ કરવું। તો યાદ કરવા માટે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ, એની સાબિતી ભક્તિ માર્ગમાં ભોગ લગાડતા હોઈએ છીએ કે ભલે ભગવાન ભોગ નથી ખાતા પરંતુ એમને ધરાવીને ખાઈએ છીએ। તો જ્ઞાનમાં બી એમને ભોગ લગાડીને ખાઈએ છીએ। ગીત છે હમારે तीर्थ न्यारे हैं, सारे जग से प्यारे। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। बाबाए ओम शांति કહ્યું તો બાળકો ઓમ શાંતિ કીધા વગર રહેવાના? તો હરેકના દિલમાં ઓમ શાંતિ। जैसे किसी को नमस्ते कहते हैं तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। जैसे કોઈને આપણે જેવી રીતે કોઈને નમસ્તે કરીએ તો એ શું કહેશે રિટર્નમાં? એ બી ઓ નમસ્તે કહેશે ને। તો यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, અહીંયા शिव बाबा શું કહે છે? ओम शांति। तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, इनकी आत्मा माना ब्रह्मा बाबा ની आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। शिव बाबा ओम शांति कहे तो हरेकना दिलमांथी पण ओम शांति शब्द निकळे छे। ओम शांति अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। भगवान ओम शांति करे तो આપણે પ્રત્યુત્તર તો આપવો પડે, નહીં તો કેવું લાગે? અપમાન કર્યું। તો ભગવાનનું રિગાર્ડ કરીએ છીએ, એમને માન આપીએ છીએ, એની નિશાની છે એ જે કહે છે એનો પ્રત્યુત્તર આપો। तो रेस्पॉन्ड तो हुआ ना। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, જ્ઞાન ચંદ્રમા બ્રહ્મા બાબા, જ્ઞાન સિતારે આપણે બધા એમના બાળકો। તો હરેક શું કહે છે? ઓમ શાંતિ। सितारों में सब आ गए, अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है। આપણો સ્વધર્મ કયો છે? હું આત્મા શાંત સ્વરૂપ છું। हम शांत स्वरूप और शांति धाम में रहने वाले हैं, यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो।
बरोबर कहा भी जाता है, મહાન આત્મા પાપાત્મા। તો જેવી રીતે બાબાએ કહ્યું કે આપણે સ્વધર્મ છે, આપણે શાંત સ્વરૂપ છીએ, શાંતિધામના રહેવાસી છીએ, આ નિશ્ચય તો બેસી ગયો। હવે આપણને બરોબર ખબર છે કે દુનિયાની અંદર આત્મા ઉપર ટાઇટલ લાગે છે, મહાન આત્મા, પાપ આત્મા, પુण्य आत्मा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। हम बाबा કહે છે કે આત્મા એ એક શરીર છોડીને બીજું લે છે, તો આત્માના કર્મો અનુસાર આત્મા ઉપર ટાઇટલ લાગે છે, પાપ આત્મા, પુણ્ય આત્મા, મહાન આત્મા। તો બાબાએ આત્માનો યથાર્થ પરિચય આપ્યો છે કે જે દુનિયાવાળા પાસે નથી, પરંતુ આપણી પાસે છે, કે આત્મા છોટી સી બિંદી સ્ટાર મિસલ है, જેની અંદર 84 જન્મોનો પાઠ નોંધાયેલો છે। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। ને આપણને બી ખબર નથી કે દુનિયાવાળા બી નથી જાણતા, પરંતુ ભગવાને આવીને પરિચય અપાવ્યો છે। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या આવ્યા છે? આત્માઓના બેહદના પિતા શિવ બાબા બ્રહ્મા તનની અંદર આવ્યા છે। બ્રહ્મા તન में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। 5000 वर्ष पहला पण परमात्माए सृष्टि पर आवीने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करी हती। तो ऐसे अब भी कर रहे हैं, जिसको भगवान कहते हैं। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही आकर करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। तो आ स्थापनाનું કાર્ય હર 5000 વર્ષનું જ્યારે ચક્ર પૂરું થાય છે ત્યારે શિવ બાબા આવીને કરે છે। તો બાબા કહે છે, તો એકલા માટે આપણે સૌ એ બાબાને ભગવાન કહીએ છીએ। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। ભગવાન છે ને, એટલે ભગવાન પાસે હરેક વ્યક્તિ માંગે છે, હે પ્રભુ સુખ દો, दुख हरो, ये दो। तो जब सुख मिल जाता है तो फिर कुछ मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। हाँ, मांगवानी जरूरत क्या है? आ कलयुगમાં માંગીએ છીએ, બાકી સતયુગમાં કોઈ માંગવાની દરકાર નથી રહેતી, કારણ કે અહીંયા કળિયુગ અંતમાં ભગવાન આવીને એટલું બધું આપી દે છે કે સતયુગમાં કોઈ વસ્તુની કમી જ નથી રહેતી કે જે માંગવું પડે। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ की उत्पत्ति, पालना और संगार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। બાબાએ આવીને શું શું સમજાવ્યું છે?
તો બાબા આવીને આપણને પહેલું તો સુખધામનો વારસો આપે છે અને એ સુખધામનો વારસો આપણે બેહદના પિતા પાસેથી બેહદનો સુખનો વારસો લઈ રહ્યા છીએ. અને બાબાએ આપણને સમજાવ્યું કે ભક્તિ માર્ગ કેવી રીતે ફરે છે, મનુષ્ય સૃષ્ટિરૂપી કલ્પવૃક્ષની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થાય છે, પછી એ કલ્પવૃક્ષની અંદર પાલના કઈ રીતે થાય છે, કલ્પવૃક્ષનો વિનાશ કઈ રીતે થાય છે, માના ડ્રામાના આદિ મધ્ય અંતનું નોલેજ આપે છે. यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी. बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर. यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए. तो बाबाए કહ્યું હવે કલયુગના અંતનો સમય છે અને અંતના સમયે વારસો આ સંગમ યુગમાં જ મળે છે. તો બાબા કહે છે अच्छी रीति समझो, अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई नहीं जानते. બાકી દુનિયાવાળાને તો ખબર જ નથી કે અત્યારે સંગમ યુગ ચાલે છે. એ લોકો તો શું સમજે છે? અત્યારે કળયુગ છે. जब तक परिचय नहीं देंगे जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है. संगम युगની ઓળખ ક્યારે થાય? જ્યારે સંગમ યુગનો પરિચય આપીએ ત્યારે લોકો જાણે. અને જ્યારે દુનિયા પુરાનીમાંથી નવી બદલાય છે અને એ વચ્ચેનો જે સમય છે એને સંગમ યુગ કહેવામાં આવે છે. यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है, यह भी तुम जानते हो. पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है. कयो धर्म होय छे? पहला पहला आखी दुनिया पर एक धर्म होय छे. कयो एक धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म. तो पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है. नई दुनिया में भारत खंड ही होता है. तो एक खंड, एक धर्म, थोड़े मनुष्य होते हैं. नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है. શું કહેવાય છે નવી દુનિયાને? સ્વર્ગ. इससे सिद्ध होता है कि नई दुनिया में नया भारत था. अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है. गांधी भी कहते थे, गांधी बापू શું કહેતા હતા? नई दुनिया नया भारत हो. ગાંધી બાપુની કઈ ઈચ્છા હતી? નવી દુનિયા આવે, નવું ભારત આવે, નવી દિલ્હી બને. अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं. ભલે અત્યારે દિલ્હીને નવી દિલ્હી કહેવામાં આવે છે, નવી દિલ્હી, પરંતુ બાબા કહે છે અત્યારે કોઈ નવું ભારત નથી કે નવી દિલ્હી નથી. नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है. यह भी लिखना चाहिए. શું લખવાનું છે? પહેલા જ્યારે નવી દુનિયા હતી ભારત ભૂમિ ઉપર તો ત્યારે લક્ષ્મીનારાયણનું રાજ્ય હતું. અત્યારે તો પુરાની દુનિયા છે તો રાવણનું રાજ્ય છે. નઈ દુનિયા નઈ દિલ્હી, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य. किनका राज्य? माना बाबाए समझाव्યું કે સતયુગ આદિથી 1250 વર્ષ પૂરા થાય છે, સતયુગ પૂરો થાય છે ત્યાં સુધી લક્ષ્મીનારાયણ, ત્રેતામાં રામ સીતા, દ્વાપરમાં દેવી દેવતાઓ આવી ગયા, માના પૂજારી થઈ ગયા, મંદિરો બન્યા. तो बाबाए बताओ फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य. यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है. આ બધું જ્ઞાન કોણ આપી શકે? તો જે નવી દુનિયા બનાવવા વાળા છે, સ્વયં પરમાત્મા, એ જ આ જ્ઞાન આપી શકે છે. ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं. जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो,
बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। हाँ, बाबा કહે છે તમે નવી દુનિયાનો વારસો લેવા આવો છો તો બાબા યુક્તિ બતાવે છે કે કેવી રીતે પુરુષાર્થ કરો તો નવી દુનિયાનો વારસો પ્રાપ્ત થશે। સન્મુખ भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पड़ते हो। ઘણા લોકો બાબા પાસે મધુબનમાં મળવા માટે સન્મુખમાં જાય છે તો ઘણા ઘરેથી નથી નીકળી શકતા તો પોતપોતાના સ્થાને જ્ઞાન લે છે। दिल होती है सन्मुख मिले, वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। દુનિયાની અંદર મનુષ્ય મનુષ્યને મળે છે પરંતુ આપણે કોને મળવા જઈએ છીએ? શિવ બાબાને। કહેંગે વહ તો નિરાકાર है, हम आत्मा भी निराकार, हम भी यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। शिव बाबा भी निराकार છે, આપણે બી નિરાકાર છે। આપણે પરમાત્માને સન્મુખમાં મળવા માટે જઈએ છીએ અને આ સૃષ્ટિ પર આપણે પોતાનો પાઠ ભજવીએ છીએ। जिनका नाम है वह जरूर पार्टधारी भी है, भगवान का भी नाम है। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान कोने कहेवाय? तो भगवान एक निराकार शिवने ज कहेवाय छे, बीजा कोईने भगवान कहवाता नहीं। भगवान निराकार ही कहा जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, કારણ કે ભગવાન એક નિરાકાર શિવ બાબાને કહેવાય છે તો એમની પૂજા થાય છે। તો નિરાકાર શિવ બાબાની સાથે સાથે આત્માઓની પૂજા મિટ્ટીના શાલિગ્રામ બનાવીને કરવામાં આવે છે। તો પથ્થર કા બનાઓ વ મિट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? रुद्र यज्ञની રચના કરવામાં આવે તો रुद्र યજ્ઞમાં શાલિગ્રામ બનાવીને પૂજા કરતા હોય છે તો કેટલી આત્માઓની પૂજા કરી શકે છે? बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो। हाँ, આપણે શું બનીએ છીએ? પરમાત્મા આ સૃષ્ટિ પર આવે છે અને આવીને પતિત મનુષ્યને પાવન બનાવવાનું કાર્ય કરે છે તો બાબા કહે છે એ સેવાના કાર્યમાં તમે મારા મદદગાર બનો છો, खुदाई खिदमतगार बनो छो। उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। જેટલા વધુ પૈસાવાળા એટલો મોટો યજ્ઞ। તો જે સાધારણ હશે તો થોડું એક માપનું શિવલિંગ બનાવશે, પછી ત્યાં થોડા ઘણા શાલિગ્રામ બનાવશે અને એની પૂજા કરશે। અને જેટલા વધુ પૈસાવાળા હશે તો શાલિગ્રામ બી અસંખ્ય બનાવશે, લાખોમાં બનાવતા હોય છે ને પછી પૂજા કરે છે। छोटा यज्ञ होता तो 5-10 हजार बनाएंगे, जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ। आजकल कलयुगમાં શું છે? यज्ञ भी पैसाના आधारे थाय छे, तो जेवा जेवा सेठ एवो यज्ञ। और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं, एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते हैं। फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो। बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा शू करी रह्या छे? आपणे सेवा। बाबा तो शू कहे छे? हूँ मारा बाळकोनो आज्ञाकारी सेवक छूँ। ज्यारे बाळक बोलावे त्यारे हाजर थई जाऊँ छूँ। तो बाबा बच्चों की सेवा करते हैं,
हम फिर औरों की सेवा करते हैं। बाबा अपनी करे, આપણે બીજાની કરીએ, इसीलिए पूजा होती है। अब तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है, बाबा आप तो सदैव पूज्य हो। આપણે અત્યારે પૂજ્ય બની રહ્યા છે અને આત્મા શું કહે છે? બાબા તો સदैव પૂજ્ય છે। તો બાબા જેવી રીતે આપણી સેવા કરીએ છીએ એવી રીતે આપણે બીજાની સેવા કરીએ તો આપણે भी बाप समान पूज्य बनी सके। तो बाबा हमको भी पूज्य बना रहे हैं। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी एक ही बार है। बाबा कितनी बार आवे छे सृष्टि पर? एक ज बार आवे छे। फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए यह होता ही नहीं। भगवान एक बार आ सृष्टि पर आवे छे अने आवीने ज्ञान आपे छे। बाकी घड़ी घड़ी भगवान आ सृष्टि पर आवीने ज्ञान आपे ए शक्य ज नथी। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। શું કહ્યું? જેવી રીતે આત્મા શરીર દ્વારા જ્ઞાન સાંભળે છે એવી રીતે પરમપિતા પરમાત્મા સુપ્રીમ આત્મા શરીરનો આધાર લઈને બ્રહ્માતનનો આધાર લઈને જ્ઞાન સાંભળે છે। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। किसको अपना शरीर नहीं है? शिव बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबको अपना अपना शरीर है। हाँ, बाबा कहे शिव बाबा ने पोतानुं शरीर नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने सूक्ष्म काया छे, परंतु आ सृष्टि पर जे मनुष्य रहे छे हरेक ने पोतपोतानुं अलग अलग शरीर छे। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। शिव बाबा केवा छे? निराकार छे, परंतु ज्ञानना सागर छे, सुखना सागर छे, प्रेमना सागर छे, आनंदना सागर छे, दया करुणाना सागर छे। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। बाबा आवीने ज्ञान आपे छे अने ए ज्ञानने आपणे जेटલું પ્રેક્ટિકલમાં લાવીએ છીએ એટલા પતિતમાંથી पावन बनिए छे। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना होता तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार? बाबा के अगर मारे प्रेरणाथी सृष्टिनुं परिवर्तन करवानुं होत, प्रेरणा द्वारा ज मारे हरेक मनुष्य आत्माओने पावन बनावी होत तो आ सृष्टि पर आवीने साकार शरीर लेवानो मारो कोई मतलब ज नहोतो। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? शिवना मंदिर में शू राखे छे? आगळ पहला नंदी राखशे, पछी काचबो भी राखे छे। तो बाबा के छे शिव के मंदिर में बैल क्यों रखते हैं? गौशाला का नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कृष्ण कोई बैल ऊपर सवारी नहीं करता, क्योंकि ये तो सतयुगना पहला राजकुमार छे। एमने शू पड़ी होय के एक बैल ऊपर कोई जानवर ऊपर जेनी सवारी करशे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी ही थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। बाबा कहे छे एक द्रौपदी ना थोड़ा वस्त्रहरण थया था, एक द्रौपदी नी थोड़ी बात छे कि जेमने भगवान ने पुकार्या था। बाबा कहे छे आज दुनिया में अनेकों द्रौपदी छे।
उन्हों तो नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको 21 जन्म के लिए नंगन नहीं होना है। તો બાબા સમજાવે છે કે જેવી રીતે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું હતું, તો બાબા આવીને આપણને જ્ઞાન રત્નોથી એટલા ભરપૂર કરે છે કે 21 જન્મ સુધી આપણે એ પરિસ્થિતિ આવતી નથી। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ भी पता नहीं। लोग शू कहे छे आ कथाओं क्यारथी बनी, तो कैसे अनादि छे। तो बाबा कहे छे अनादि छे तो पर क्यांथी शुरू थई यह भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चाँद सितारे आदि तो है ही, सतयुग में भी तो अब भी है। बाबा कहे छे सूर्य चाँद सिताराओ सतयुगमां भी होय छे, तो अत्यारे भी छे, एमनुं कार्य कर्या करे छे, उनका बदल सदल नहीं होता है। तुम अब निमित्त बनते हो, भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। बाबा कहे छे कि जे सूर्य चांद सिताराओ जे आकाशमां छे ए तो सतयुगमां हता ने अत्यारे छे, एमनी कोई अदला बदली नहीं थती, परंतु अत्यारे बाबा आ भारतनी अंदर रहेवावाळा हरेकने अज्ञानताना अंधकारथी निकाळीने ज्ञाननो प्रकाश आपे छे। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है, तुम्हारी महिमा है। तुम धरती के सितारे हो, सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। आपणे कौन छे? धरतीना सिताराओ, तो धरतीना सिताराओ होय तो सूर्य चांद भी होय। यह भी तुम्हारा रूहानी तीर्थ है। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अत्यारे अपनी यात्रा चाली रही छे, तो बाबा कहे छे अत्यारे बाबा आपने एवी यात्रा करावे छे कि जेवी यात्रा आपणे क्यारे आखा सृष्टि चक्र में करी नथी। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमरलोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए कलयुग छे मृत्युलोक, सतयुग छे अमरलोक। द्वापर युग थी मृत्युलोकनी शरूआत थई। हवे बाबा आपने साची अमर कथा संभळावे छे, अमरलोक सतयुगी दुनिया में लई जवा माटे। तुम जानते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अहींया बैठा बैठा આપણે યાત્રા ઉપર જઈએ છીએ, કોઈ મહેનત નથી કરવાની, કોઈ ચાલવાનું બી નથી, કોઈ મુસાફરી બી નથી, માત્ર બેઠા બેઠા યાત્રા કરવાની છે। અને જે યાત્રા દ્વારા આપણો વિકર્મ વિનાશ થશે। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले लेते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना। जैसे ब्राह्मण पतित वैसी यात्री भी पतित। आजकल दुनिया में आम तो यात्रा परनो नियम शू होय कि ज्यारे यात्रा करवा जाए ने, चाहे महीनानी होय कि 2 महीनानी, तो एटलो समय पवित्र धर्मनुं पालन करता होय। परंतु आजकल तो बाबा कहे छे यात्रा पर भी पतित होते हैं। तो ब्राह्मण जे लई जवावाळा छे ए ज पतित होय तो यात्री भी पतित बने छे। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी ही है।
तुम तो पवित्र रहती हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। बाबा કહે છે આપણે સાચા પવિત્ર છીએ, સાચા બ્રાહ્મણ છીએ અને યાદની યાત્રા દ્વારા આપણે પવિત્ર બનીએ છીએ। तो सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। बाबा वारंवार શું કહે છે? मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, लाडले बच्चे, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा શું કહે છે? મીઠે બચ્ચે, લાડલે બચ્ચે, સિકિલતે બચ્ચે, તો તમે મને યાદ કરો તો યાદ દ્વારા તમો પ્રધાનમાંથી સતો પ્રધાન બની સતો પ્રધાન દુનિયાના માલિક બની જશો। બસ એક ही ડાયરેક્શન હે મુખ્ય, એક જ ડાયરેક્શન છે ને બાબાનું હરરોજની મુરલી, ભલે 4 પેજની બાબા મુરલી સંભળાવે, આખેનો સાર કયો હોય છે? મને याद करो। कितना सहज है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है, बाबा કહે છે કેટલું સહજ છે। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, फिर सजा खाएंगे। याद करो तो विकर्म विनाश थશે, याद नहीं करो तो विकर्म विनाश थता નથી, પછી સજાઓ ખાઓ। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा કહે છે ગમે ત્યાં જાઓ, ગમે તે કર્મ કરો, કર્મ કરતા હરતા ફરતા એક તો કામ કરવાનું છે, બાબાને યાદ। तुम्हारी कमाई है, बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो जे श्रीनाथजीનું મંદિર છે તો એ મંદિરમાં શું થાય? ત્યાં બધા એમની યાદમાં બેસે અને ભોગ લગાવે છે। મૂર્તિ તો પથ્થરની છે, ભોગ भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। बाबा કહે છે ભોગ લગાવવાના અધિકારી કોણ છે? તો એક શિવ બાબા જ છે। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो क्यों? बाबा કહે છે હું કંઈ પણ સ્વીકાર નથી કરતો, તો એ તમે શું કરો? दूध કેવું ચડાવો છો? પાણીવાળા दूध। બાબા આજે કહી દીધું કે આપણે શિવલિંગ ઉપર શું કરીએ? એકલું દૂધ થોડું લઈ જઈએ છીએ, દૂધમાં પાણી મિક્સ કરીને લઈ જઈએ છીએ। तो पानी वाला दूध चढ़ाते हो, भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। क्या किया? ભોગ એમ કહીએ કે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો, પણ ગમે સારી સારી આઈટમ બનાવી ભોગ લગાવવાનો છે, બાબાને ધરાવવાનો છે, પણ બાબાને લગાવ્યા પછી ખાય છે કોણ? ભક્તો। બાબાના બાળકો જ ભોગ ખાય છે ને, બાબા થોડી ભોગ ખાય છે। यह जैसे किसका रिगार्ड रखना है, हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। बल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो, यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। बाकी वासना तो क्या आएंगी? बाकी वासना तो आएंगी ना। बाबा કહે છે તમે જ્યારે બાબાનું અવતરણ હોય, શિવ બાબા બ્રહ્માતનની અંદર આવ્યા હોય તો આપણે ભોગ ખવડાવીએ તો કોણ ખાય છે? શિવ બાબા થોડી ખાય છે, તો બ્રહ્મા બાબા ખાય છે। ખાલી શિવ બાબા તો વાસના લે છે,
बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, यह ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश कर आता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। બાબા બ્રહ્મા તનની અંદર પ્રવેશ કરીને આવે છે તો કામમાં શું લે છે? ખાલી બ્રહ્મા બાબાનું મુખ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। कोना द्वारा बाबा एडाप्ट करे छे? तो ब्रह्मा द्वारा बाबा अपने एडाप्ट करे छे। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसीलिए सरस्वती को निमित्त रखा। ड्रामा प्लेन अनुसार ब्रह्मा बाबा माँ बाप बने छे, परंतु जे कन्याओ हता, माताओ हता, एमने संभाळवा माटे आ दुनियानी अंदर एक निमित्त स्त्री जोईए, तो एमा बाबाए मम्माने मुख्य राख्या, निमित्त बनाव्या। माता गुरु की महिमा भी चाहिए। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मनमना भव, मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। અત્યારે તો હરેક વ્યક્તિ એક જ રસ્તો બતાવે છે, ચાહે બાપ એટલે જ્ઞાન સૂર્ય શિવ બાબા, માँ એટલે બ્રહ્મા माँ અને સર્વ બ્રાહ્મણ આત્માઓ। यहाँ तुम सन्मुख बैठते हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षी को याद करो। बाबा કહે છે હરેકને એક યુક્તિ બતાવો, કઈ? કે સ્વદર્શન ચક્રધારી બની મુક્તિધામ એટલે પરમધામ, બાપ શિવ બાબા, વારસો સતયુગી દુનિયાને યાદ કરો। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगाड़ देना है। तो बाबाए आज कई युक्ति बतावी एकबीजाने रिगाड़ आपवानी। तो पहला स्वधर्म में स्थित थई जे पण व्यक्ति आपणी सामे मळे एने दिलथी ओम शांति करो। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। बाबा भले अभोक्ता छे, परंतु बाबाना भंडारानुं आपणे खाईए छे, तो जेना भंडारामांथी खाता होय एने भोग अवश्य लगावो पड़े। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। तो बाप समान पूजनीय बनवू छे, तो बाबा कहे छे खुदाई खिदमतगार बनो, बाबानी साथे सेवा में मददगार बनो। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। पूजा भी क्यारे थशे? જ્યારે આપણી આત્મા અને શરીર બંને પાવન બનશે ત્યારે। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव।
इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। કારણ કે પોતે આપણે સ્વયંને જિમ્મેવાર સમજીને કર્મ કરવાનું છે. હરેક કર્મ વિધિપૂર્વક હોવું જોઈએ. કારણ કે સંગમ યુગમાં શ્રેષ્ઠ આત્માઓ દ્વારા જે શ્રેષ્ઠ કર્મ થાય છે એ આખા એક કલ્પની અંદર વિધાન બની જતું હોય છે. તો સ્વયં કો विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। संगम युग में આપણે जिम्मेवार आत्माओं છે, विधानની रचना करवा वाला। तो इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएंगी। कोने साथे राखो? सर्वशक्तिवान परमात्माने साथे राखीशुं तो माया शुं बनी जशे? जे टाइगर समान होय छे ए टाइगर बी केवो पेपर टाइगर माने कागळना वाघ समान बनी जशे। अच्छा, ओम शांति।